حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ مسلمانوں کی تصویر پر فائرنگ دکھانے والی ویڈیو، آسام CM کی شرانگیزانہ حرکت کے خلاف فوجداری کارروائی کا مطالبہ، بیرسٹر اسدالدین اویسی پولیس کمشنر سے رجوع۔ BRS دراصل بلیک میل کرنے والی اصل سیاسی جماعت، BRS و BJP میں کوئی فرق نہیں، چیف منسٹر ریونت ریڈی کا الزام۔ اکبر الدین اویسی کا نظام آباد میں ریونت ریڈی پر طنز، کھوکھلے وعدوں کا الزام، گیس سلنڈر، پنشن و مکانات کہاں گئے، کانگریس سے مانگا جواب۔ فون ٹیپنگ کیس میں ثبوت مٹانے کے الزامات، BJP MP اروند کا اتم کمار ریڈی پر بڑا حملہ، KCR سے مبینہ لین دین کا دعویٰ۔ تلنگانہ کے عوام کو ریونت ریڈی کے وعدوں پر کوئی بھروسہ نہیں، چیف منسٹر کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، BRS لیڈر KTR کی تنقید۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ظہیر آباد میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا اور BJP کے ایک سوشل میڈیا ہینڈل کی جانب سے شیئر کی گئی اس ویڈیو کی شدید مذمت کی، جس میں انہیں مسلمانوں کی تصویر پر فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جس کے ساتھ نفرت انگیز پیغام بھی درج کیا تھا۔ بیرسٹر اویسی نے اس عمل کو آئین کے خلاف، نفرت پھیلانے والا اور ملک کے سماجی تانے بانے کو نقصان پہنچانے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک موجودہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے اس طرح کی حرکت انتہائی سنگین ہے، اور انہوں نے یاد دلایا کہ شاہین عبداللہ کیس میں سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ نفرت انگیز بیانات یا بصری مواد پر FIR درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ بعد ازاں اسدالدین اویسی نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ انہوں نے حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سے رجوع کرتے ہوئے ہیمنتا بسوا سرما کے خلاف فوجداری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور افسوس کا اظہار کیا کہ ملک میں نسل کشی پر مبنی نفرت انگیز تقاریر معمول بنتی جا رہی ہیں، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور آئینی ادارے خاموش نظر آتے ہیں۔ ان کا چیف منسٹر آسام کا ایک ویڈیو ڈالتا ہے، بندوق ہے اور گولی چلا رہا ہے، اور گولی ایک فوٹو بنائی گئی ایک مسلمان صاحب کے بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کلین شاٹ بولتے، نو مرسی، اور نریندر مودی بولتے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور مودی گئے ہوئے ہیں ملیشیا، وہاں کا پرائم منسٹر انور ابراہیم پلینس ہوتا تھا کہ انور ابراہیم سے گلے مل رہے، اور یہاں پر ان کا چیف منسٹر ایک ویڈیو بنا کے گولی چلا رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ یہ نفرت نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ؟ مذاق کیا جا رہا ہے آسام کے مسلمانوں سے کہ آپ ویڈیو بناتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، مگر سوشل میڈیا پہ تو آ گیا وہ۔ مطلب ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ ان کی عزت کو کم کر دیا جائے۔ سنو ہیمنت بسوا شرما، ہم تمہارے ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مسلمان جیتا ہے تو اللہ کے رحم و کرم پر جیتا ہے، اور یاد رکھو مرنا تو سب کو ہے ایک دن، نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا اس دنیا سے۔ ہم اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، اگر ہم مر بھی جائیں گے تمہاری گولی سے تو خدا کی قسم ہم شہید کہلائیں گے۔ زندہ رہیں گے تو لوگ بولیں گے یہ مجاہد ہے یا غازی ہے جس نے ظالموں سے پنجہ آزمائی کی تھی، مگر اگر تمہارے نیچ حرکتوں سے ہم موت کے خوف سے اپنا اس ضمیر کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہے، مگر تم بے نقاب ہو رہے ہو ملک میں بھی اور سارے دنیا میں بھی، کہ تم صرف نفرت کے اوپر ایک چھوٹا سا آسام کا الیکشن جیتنا چاہتے ہو۔
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीआरएस दरअसल ब्लैकमेल राजकीय समिति है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि केसीआर के खानदान ने फोन टैपिंग, लैंड ग्रैब के जरिए ताजरों को लूटा है और भारी रकूमात हासिल की। रेवंत रेड्डी ने बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में अवामी जलसों से खिताब करते हुए ये इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी को जुमला 15 करोड़ रुपए चंदा हासिल हुआ है, जिसका हिसाब बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीआरएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है और ये दोनों जमातें कांग्रेस को शिकस्त देने का काम कर रही हैं। इस तरह के साथ साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि अप्रैल के बाद रियासत में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज किया जाएगा और आइंदा बजट में इसके लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मौजूदा इज़्ला को बरकरार रखा जाएगा और ना किसी ज़िले को ख़त्म करने और ना ही नए अज़ला को तश्कील की कोई तजवीज़ हुकूमत के ज़ेरे गौर है। उन्होंने सवाल किया कि अगर बीआरएस बीजेपी का साजबाज नहीं है तो फिर मरकजी हुकूमत केसीआर के खिलाफ सीबीआई तहकीकात का आगाज क्यों नहीं कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी केसीआर का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में केटीआर को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। నాయకులను వదలలే, హైకోర్టు జడ్జిలను వదలలే, చివరికి జర్నలిస్టులను వదలలే. భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకుంటే కూడా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారని విన్న సన్నాసులు ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఎక్కడన్నా భూమి మీద ఉంటదా? ఇంతకంటే పాపాత్ముడు ఎవడన్నా ఉంటాడా? పెళ్ళా మొగుడు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటే కూడా వాళ్ళ మాటలిని, సినిమా తారల మాటలిని, ప్రతిపక్ష నాయకుల మాటలిని, జర్నలిస్టులను జడ్జిలను కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేసి, వ్యాపారాలు చేసుకునేటోళ్లను బ్లాక్మెయిల్ చేసి, ఎవరో కాదు బీజేపీ ఎంపీ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారే చెప్పారు, మా ఫోన్లని మా భూములు కొనుక్కున్నోళ్లను బ్లాక్మెయిల్ చేసి కోట్ల రూపాయలు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ వసూలు చేసిండ్రు, మమ్మల్ని బెదిరించి మా దగ్గర కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టిండ్రని. టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా బ్లాక్మెయిల్ చేసి కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసుకున్న బీఆర్ఎస్ ను బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయ సమితి అని ఈ రోజు నేను అధికారికంగా చెప్పదలుచుకున్నా. ఈ రోజు బీఆర్ఎస్ అంటే బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయ సమితి. ఈ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా వందల కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ బీఆర్ఎస్ అకౌంట్ లో 1500 కోట్ల రూపాయలు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఎవని అబ్బ సొమ్మని నేను అడుగుతున్నా. వేల కోట్ల రూపాయల ఇవాళ ఆస్తులు, 100 ఎకరాల భూములు వ్యాపారస్తులను బెదిరించి అగ్వసాగ్వకు వాళ్ళ భూములు కొనుక్కున్న మాట వాస్తవం కాదా? గుంజుకున్న మాట వాస్తవం కాదా? మరి ఎందుకు వాళ్ళను తీసి బొక్కలేసే పని మోడీ, కిషన్ రెడ్డి చేస్తలేరని నేను అడుగుతున్నా. అందుకే మిత్రులారా, చేసిన పాపాలు ఊరికే పోవు. ఆ పాపాల ఊబిలోనే బీఆర్ఎస్ కూరుకుపోతుంది. ఈ కేసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికే మొన్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 8 సీట్లు బీజేపీలను గెలిపించారు. ఇవాళ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా అదే రకమైన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకే అప్రమత్తంగా ఉండండి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, బీఆర్ఎస్ బీజేపీ వేరు వేరు కాదు. బొమ్మ బొరుసు లాంటి వాళ్ళు, బిల్లా రంగా లాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళిద్దరు కూడబలుక్కొని ప్రత్యక్షంగా ఒకడు పరోక్షంగా ఒకడు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడగొట్టాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీని దెబ్బతీయాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భూపాలపల్లి గడ్డ మీద, వరంగల్ జిల్లా మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయాలి. तेलंगाना के वजीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों की फलाह व बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशा है और अब हर अहल गरीब शहरी को अपना घर देने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। उन्होंने हनमकुंडा के चेलपुर में म्यूनसिपल इलेक्शन के दौरान खिताब में बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मुतअद्दिद फलाही स्कीमों जैसे इंदिरा हाउसिंग, बेहतरीन चावल, राशन कार्ड्स और मुफ्त बिजली का निफाज जारी है, जिससे खास तौर पर खवातीन के चेहरों पर खुशी देखी गई। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज अप्रैल से होगा और 3 मज़ीद मराहिल में अहले गरीबों को अपने घर फराहम किए जाएंगे। जबकि पिछली बीआरएस हुकूमत पर 10 सालों तक गरीबों के लिए घर बनाने में गफलत बरतने का इल्ज़ाम भी लगाया। वजीर ने यह भी कहा कि ज़मीन से मुताल्लिक़ झगड़े ख़त्म करने के लिए
भू भारती एक्ट नाफिज किया गया है ताकि लोगों को सही दस्तावेजात के साथ जमीन के हुकूक मिल सके। దానికి కారణం ఆనాటి 10 సంవత్సరాలలో సంవత్సరానికి ఒక 100 ఇచ్చున్న నియోజకవర్గంలో మున్సిపాలిటీల్లో 1000కి పైగా అయ్యుండే 10 సంవత్సరాల్లో. కానీ ఆనాడు ఇవ్వని కారణంగా మొదటి విడత ఇప్పుడు ఇచ్చాం, రేపు ఏప్రిల్ నెలలో రెండో విడత ఇస్తున్నాం, ఇంకా 3 విడతలు అర్హులైన పేదవాళ్లకి ఈ ప్రభుత్వం తప్పకుండా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చి తీరుద్ది. ముఖ్యమంత్రి గారు పదే చెప్తున్నారు, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల విషయంలో ఎక్కడా తగ్గేది లేదన్నా, ఇంకా అధికంగా ఇచ్చి ఆడబిడ్డల్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదుకోవాలి. ఏ మున్సిపాలిటీలోనైనా అర్హులైన పేదవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా 100కి 100% ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇవ్వాల్సిందే. దానికి ఒక ప్రణాళిక తయారు చేయమని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. ఇచ్చిన ప్రతి మాటని నెరవేర్చే ఈ ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న పేదవాడితో పాటు పట్టణ ప్రాంతంలో నివసించే పేదవాడికి కూడా పూర్తి భద్రతతో పాటు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చి తీరుద్దని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. कायदे मुखन्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने निजामाबाद में मुनाक़दा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावसता तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनक़ीद की और उन्होंने इन्हें अवाम से खोखले वादे करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से क़ब्ल आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया में इजाफा, शादी मुबारक स्कीम में सोना शामिल करना, तालिबात को मोटरसाइकिल फराहम करने जैसे ऐलानात किए गए। मगर आज अवाम से सवाल है कि क्या इन्हें गैस सिलेंडर मिला, क्या पेंशन मिली, क्या 2 बेडरूम मकानात फराहम हुए, क्या तलबा को स्कॉलरशिप्स मिले, क्या शादी मुबारक स्कीम के तहत सोना दिया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के वादे सिर्फ तकारीर तक महदूद रह गए हैं, जबकि ज़मीनी सतह पर अवाम को कोई हकीकी फ़ायदा नहीं पहुंचा। इसलिए अवाम को अब वादों को नहीं बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर अपना फैसला करना होगा। जब से बड़े फेंकू की बात कर रहा हूं, हमारी रियासत में एक छोटा फेंकू भी है। मालूम आपको? मालूम कौन? अरे भाई, हथेली में जन्नत दिखाया, इमाम मौजनों को बढ़ के दे दूंगा, शादी मुबारक सोना दे दूंगा, पढ़ने वाले बच्चियों को मोटरसाइकिल दे दूंगा। क्या क्या नहीं बोला भाई, क्या क्या मेरे पास है। आते आते देखा मैं, मालूम नौजवानों को नहीं मालूम होगा, बुजुर्ग यहाँ पे, अब बुजुर्ग जरा नेक हो गए, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी होंगी। एक फिल्म आया था, बलाला साहब याद होगा। मैं तो फिल्मों का शौकीन था, मोदी की एक्टिंग के बाद छोड़ दिया। एक फिल्म आई थी, एक राज कपूर की, राज कपूर नहीं, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर, श्री 420 याद है 420 वादे। गैस का सिलेंडर मिला, वजीफा मिला, 2 बेडरूम घर मिला, स्कॉलरशिप मिली, शादी मुबारक का सोना मिला। संगारेड्डी में आज महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली AIMIM मुंब्रा की कॉरपोरेटर सहर यूनुस शेख की आमद पर सियासी सरगर्मियों में तेजी देखने में आई है। 11 फरवरी को होने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन की ज़िमन में उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनान के हमरा एक शानदार रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान सहर यूनुस शेख ने अवाम से खिताब करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसियों, अक़लियतों के हुकूक और अवामी मसाइल के हल के लिए पार्टी की जद्दोजहद पर रोशनी डाली और बल्दी इंतखाबात में AIMIM उम्मीदवारों की तायद की अपील की। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और मुकामी कायदीन मौजूद थे, जबकि रोड शो के दौरान अवाम की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल किया गया और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। तबस्सुम वार्ड नंबर 4 से खड़े हैं, जो वार्ड नंबर 24 से खड़े हैं, सॉरी,
और 4, 5, 24, 25, 26 सब वार्ड के जितने भी कैंडिडेट्स MIM के हैं यहाँ पर, आप लोगों का इस इलेक्शन में ये जिम्मेदारी है कि आप MIM के हाथ मजबूत करें। और आप वो कैसे करेंगे? इन सभी कैंडिडेट्स को भारी वोटों से जिताकर करेंगे ना? और किस निशानी पर आपको वोट देना है? इस बार सिर्फ और सिर्फ पतंग लहरानी चाहिए इंशाअल्लाह। और एक बात जरूरी आपको बता दूं कि इलेक्शन है तो प्रचार चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है, कैनवसिंग चल रही है, कई सारे दूसरे पार्टी के लोग भी आप तक आएंगे, लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि हक पर कौन खड़ा है, आपके हक के लिए कौन आवाज उठाता है, आपके हक के लिए कौन काम करता है, इलाके के डेवलपमेंट के लिए कौन काम करता है। पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान का ज़मीर जिंदा होना जरूरी है, तभी जाके इंसान दूसरे इंसान के लिए काम कर सकता है। तो पैसे बांटने वाले भी आएंगे, उन लोगों से पैसे ले लेना, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ MIM पार्टी के कैंडिडेट को ही देना। ये जरूर करना, क्योंकि वो पैसे आपके ही है, टैक्स का पैसा वो लेते हैं, खाते हैं, फिर इलेक्शन के वक्त आपको वही पैसा दे करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। गुमराह मत होना और हर स्कीम जो गवर्नमेंट हमारे लिए लाती है उन स्कीम्स पर ध्यान दें। अब SIR को लेकर आप देख रहे हैं देश भर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। मुंबई में हम SIR पे आवाज़ भी उठा रहे हैं ताकि मुंबई में अब आए नहीं वो चीज़, बट बिहार में ऑलरेडी हो चुका है। और उसके वजह से आप देख रहे हो ममता बनर्जी भी, बंगाल में भी बहुत तकलीफ हो गई, वो पूरी की पूरी बंगाली पब्लिक लेकर के दिल्ली पहुंच गए। तो हमको ये चीज़ों को रोकना है और ये रोकने के लिए हमको हमारे लोग चाहिए और असद साहब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ वही वाहिद शख्स है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने इतवार को बल्दी इंतखाबात की मुहिम के दौरान तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी पर सनसनीखेज इल्जामात आयद करते हुए कहा कि फोन टैपिंग केस में शवायद मिटाने की कोशिश रकम के अवीज की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि के चंद्रशेखर राव से मुबैना लेन देन के बाद स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आग लगाने का वाकया पेश आया था ताकि सबूत खत्म किए जा सके। अरविंद ने उत्तम कुमार रेड्डी को BRS का आदमी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत BRS के साथ खुफिया मुफाहिमत में मुलविस है और इसी वजह से मिशन काकतिया और कालेश्वरम करप्शन मामलात में KCR के खानदान को बचाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो बल्दी इंतखाबात में बगैर किसी इत्तेहाद के मैदान में उतरी है और शहरों की हकीकी तरक्की सिर्फ बीजेपी को वोट देने से ही मुमकिन है। अरविंद ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इख्तिदार में आने काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद इंतखाबी वादों पर कोई अमल नहीं किया गया। BRS के कारगुजार सदर व साबिक रियासती वजीर KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनके वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। KTR ने भोपालपल्ली में इंतखाबी रोड शो से खिताब करते हुए कहा कि आज रेवंत रेड्डी जयशंकर भोपालपल्ली जिले को बरकरार रखने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इनके वादों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। कांग्रेस और रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार हासिल करने से कबल 6 जमानतें दी थी और कई वादे किए थे, ताहम एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। KTR ने दावा किया कि BRS ने अपने दौरे इख्तिदार में आवाम की बेहतरी और फलाह व बहबूद के लिए कई काम अंजाम दिए थे, ताहम कांग्रेस हुकूमत ने 2 साल में कोई काबिले कद्र कारनामा अंजाम नहीं दिया है। KTR ने दावा किया कि रेवंत रेड्डी का ये रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कुछ हैं और करते कुछ हैं और इनके ख्वाल व फाल में तसाद है। रियासत के अवाम अब इनके छांसे में आने वाली नहीं है। अवाम ये समझ चुके हैं कि रेवंत रेड्डी महज वादे करते हैं और इनको पूरा नहीं करते। రేవంత్ రెడ్డి భూపాలపల్లి జిల్లా నట తీసేయడట, వాళ్ళు పెట్టిన అవరా తీసేస్తాం. జయశంకర్ సార్ పేరు మీద పెట్టింది ఎవరు? భూపాలపల్లి జిల్లా చేసింది ఎవరు? భూపాలపల్లికి మెడికల్ కాలేజ్ తెచ్చింది ఎవరు? భూపాలపల్లిలో కలెక్టర్ ఎస్పీని కూర్చోబెట్టింది ఎవరు? భూపాలపల్లిలో 1000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టింది ఎవరు? సింగరేణి క్వార్టర్లు కట్టింది ఎవరు? 19,000 విరాసత్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఎవరు? సింగరేణికి న్యాయం చేసింది ఎవరు? మరి పొట్టోడు పీకిందేమో 2 నెలలు. దానికన్నా ఇంకా పెద్ద పోజులు కొట్టుకుంటూ వచ్చి నేను తీసేయ్యా, నేను అడుగుతున్నా, తీసేస్తే ఊరుకుందందుకు భూపాలపల్లిలో అమాయకం కొడుతురే. ఈ చింతపండు అవుతుందని తెలుసు నీకు.
बीआरएस पार्टी उम्मीदवार की तायद में साबिक वजीर और पार्टी के नायब कायद असम्बली टी हरीश राव ने सदाशिवपेट और जहीराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुहिम के दौरान रोड शो और जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली इंतखाबात से कबल आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया, जिनमें शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 तोला सोना, 4,000 रुपये पेंशन, तलबा को स्कूटर्स, बेरोजगार नौजवानों और खवातीन के लिए वज़ाइफ समेत तकरीबन 420 वादे शामिल थे। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद तरक्की रुक गई और जहीराबाद बल्दिया के 25 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड्स वापस लिए गए, जबकि बीआरएस हुकूमत के दौर में 50 करोड़ रुपए से तरक्याती काम अंजाम दिए गए। डबल बेडरूम मकानात तकसीम हुए। मिनी हज हाउस, मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ अराजी और मुस्लिम शादी खाना के लिए मंजूरी दी गई। इस मौके पर रुकने असम्बली चिंता प्रभाकर ने सदाशिवपेट में गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान सरकारी हॉस्पिटल की जदीद इमारत, बस स्टैंड, कौमी शाहराह पर डिवाइडर, वॉच सेंटर, लाइटिंग, मिनी टैंक बैंड, पीने के पानी की फराहमी, तमाम वार्ड्स में सीसी रोड, सड़कों और ड्रेन के कामों को उजागर करते हुए अवाम से अपील की है कि वो कार के निशान पर वोट देकर के चंद्रशेखर राव के हाथ मजबूत करें और बल्दिया के तमाम 26 बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। जलसे में बीआरएस के मुनक़िदा कायदीन और कारकुनान बड़ी मकदार में मौजूद थे। बीआरएस के सीनियर रुकने असम्बली व साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त का खौफ लाहक है, जिसकी वजह से वो मुत्तहदा जिले मेदक में इंतखाबी मुहिम चलाने से गुरेज कर रहे हैं। हरीश राव ने दोबाग असम्बली हल्के में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए दावा किया कि मेदक जिले में बीआरएस को शानदार कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए हैं, जिसकी वजह से अवाम में नाराजगी है और अवाम ने बीआरएस को कामयाब बनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तमाम निजामाबाद, करीमनगर और वरंगल जैसे अजला का दौरा किया, लेकिन इन्हें मेदक आने से खौफ महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को पता है कि अवाम इनसे इंतखाबी वादों पर सवाल करेंगे, इसीलिए शिकस्त के खौफ से वो मेदक नहीं आए हैं। हरीश राव ने दावा किया कि म्युनिसिपल इंतखाबात में बीआरएस को अवाम शानदार कामयाबी से हमकिनार करेंगी। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 29 और 28 में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। साबिक वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी वार्ड 29 के साथ साथ वार्ड 28 में भी राय दहिंदों को लुभाने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे क़िज़र अहमद याफ़ई की देखिए ये खास रिपोर्ट। इंतखाबात का आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। 5 बजे से पहले कैंपेनिंग को ख़त्म करना है। इसके बाद में कल साइलेंट मोड रहेगा और 11 तारीख को पोलिंग का दिन है। आज हम वार्ड नंबर 28 और 29 का दौरा किए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में वार्ड नंबर 29 के और 28 के दोनों भी उम्मीदवार हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर 28 और 29 के अंदर घर घर यहाँ पर घूमते हुए वोटर से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। ज़हीर भाई, आपका वीवन चैनल में खैर मकदम है। जैसे कि कल रात में कंदी सिनेमा रेड्डी और डीसीसी का यहाँ पर और वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी का दौरा हुआ था, उसके बाद में भी यहाँ पर 28 और 29 के अंदर लोगों के अंदर एक जोश दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर से वार्ड नंबर 29 इस मरतबा टफ मालूम हो रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अभी जो इलेक्शन चालू हुआ तो जब से लेके अब तक हालात बहुत बदल गए हैं। वार्ड नंबर 28 और 29 में लोग डिसाइड हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है, क्योंकि काम रूलिंग गवर्नमेंट ही कर सकती। जो रूलिंग में गवर्नमेंट रहती वो लोग ही काम कर सकते, वरना कई वार्डा हैं आदिलाबाद शहर के अंदर ऐसे जहाँ पर लोग रूलिंग गवर्नमेंट को वोट नहीं डालने से उनके वार्ड में काम नहीं हुए, डेवलपमेंट नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। इसलिए आज हम वार्ड नंबर 28 में हमारे शोएब भाई के लिए घर घर जाकर जो है तो लोगों को बताए कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालो। शोएब भाई एक फ्रेश कैंडिडेट है, उनके लिए आप वोट डालिए। आगे आपके लिए बहुत काम करेंगे उन्होंने, क्योंकि रूलिंग में गवर्नमेंट है। काम करने के लिए सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत परेशानी होती। इसलिए मैं तमाम हमारे 28 नंबर के लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे शोएब भाई को 3 नंबर पे उनका निशान है, उनको वोट डालकर कामयाब करें। तेलंगाना भर में जोश व खरोश के साथ शुरू होने वाले बल्दी इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो चुका है। आदिलाबाद का वार्ड नंबर
35 इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि यहां से कांग्रेस ने दूसरी पार्टी से वाबस्ता उम्मीदवार को कांग्रेस का टिकट दे दिया। वार्ड 35 से कांग्रेस के टिकट पर सबाहत जरीन अब्दुल वसीम इंतखाबी मैदान में हैं, जो कि इस वक्त इख्तिदार में कांग्रेस हुकूमत है और वो कामयाबी के बाद अवामी खिदमत को अपना मकसद बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने BBN चैनल से बात करते हुए इन पर लगाए जा रहे तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। इस ज़िम्मन में हमारे नुमाइंदे क़िदर अहमद याफ़ई की देखिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि म्युनिसिपल इंतखाबात आखिरी मराहिल के अंदर है और आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है, BBN टीम आदिलाबाद के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा कर रही है। आज हम यहाँ पर शांति नगर वार्ड नंबर 35 में यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सबाहत जरीन अब्दुल वसीम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। इससे पहले भी इन्होंने BRS के टिकट पर यहाँ पर मुकाबला किया था और कम वोटों से इन्हें शिकस्त हुई थी। इस मरतबा क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट है और इन पर भरोसा करके कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है और ये बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स के साथ में वार्ड नंबर 35 का दौरा करते हुए लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और राय दहिंदों को राग़िब कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट डालकर इन्हें भारी अक्सर से कामयाब बनाएं ताकि ये वार्ड की तरक्की के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर सके। आइए हम इस बारे में अब्दुल वसीम साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। वसीम साहब, आपका BBN चैनल में खैर मकदम है। जैसे कि आप पहले दूसरी पार्टी से थे और कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा करके आपको टिकट दिया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को बहुत भरोसा करके साजिद खान के ज़रिए मेरे को टिकट आई DCC प्रेसिडेंट के लिए, इसकी बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आज आप महिला घूम रहे हैं वार्ड नंबर 35 भी, आप भी देखे हैं कैंपेनिंग रैलीज, जहाँ पे भी हर घर में हमको रिस्पांस मिल रहा है। हर लोग यही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है बोल के। जैसे कि आप पर ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि आप क्या है दूसरे वार्ड के हैं और किसी और वार्ड के अंदर आप मेहनत करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप खुद देख रहे, मेले में घूम के हम दूसरे वार्ड के हैं, क्या है ये 10 साल पहले जो वार्ड डिलिमिटेशन हुआ था, जब हमारा घर 34 नंबर में आया है, तो अब हम किस मस्जिद के मुसल्ली है और वहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हैं कि हम दिन रात कहाँ मेहनत करते। लॉकडाउन में पूरा 35 नंबर वार्ड में ही हर घर को हम राशन पहुँचाए, हर मेडिकल किट्स पहुँचाए, हम तरकारी पहुँचाए, हर ऑक्सीजन का काम शांति नगर में कहाँ से चालू हुआ, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, मस्जिद के वहाँ पे चालू हुआ 35 नंबर में। ये सब काम हम करें। आज हर महल्ले के हर शख्स को आप पूछ सकते हैं 35 नंबर में हम और हमारी फैमिली क्या काम करी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने इतवार 8 फरवरी को तेलंगाना स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स में मुनाक़दा तकरीब में 1446 पुलिस एहलकारों को कानून व नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और समाजी बेहतरी के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने पर एजाज़ात से नवाजा। इसमें 271 एहलकारों को एक्स्ट्रा माइल अवार्ड दिया गया, जो अपने फ़राइज़ से बढ़कर इंसानी हमदर्दी, इनोवेशन और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, जबकि 1175 को गुड वर्क डेन इनामात दिए गए, जो गुज़िश्ता माली साल के दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में उमूदा खिदमात के एतराफ़ में थे। तकरीब में मुख्तलिफ दर्जात के अफसरान, सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स, होमगार्ड्स, दफ्तर अमला और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स शामिल थे और कमिश्नर ने कहा कि पुलिसिंग सिर्फ पेशा नहीं बल्कि एक समाजी जिम्मेदारी है, जिसमें आवाम के एतमाद और खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। मज़ीद बरा अब ऐसे इज़्ज़ात हर माह जोनल सतह पर दिए जाएंगे ताकि बेहतरीन कारकर्दगी को तहरीक मिल सके। हैदरा की जानिब से शहर और अतराफ के इलाकों में सरकारी अरादियात पर नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए अरादियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। हैदरा ने ताज़ा कार्रवाई में मेनपुर में वाक़े पार्क की 1200 गज अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिसकी मालियत 7 करोड़ रुपये बताई गई है। कहा गया है कि हैदरा की जानिब से चरकापुरी कॉलोनी में पार्क के खैमुखाम पर नाजायज़ कब्ज़ात के खिलाफ मुहिम चलाई और वहां सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। हैदरा के अहदेदारों ने बताया कि यहां 1200 गज से ज़ायद अराजी पर कब्जा कर लिया गया था, जो अमीनपुर में वाक़े है। इस अराजी को अवामी सहूलत और पार्क के लिए मुख्तस किया गया था। चरकापुरी कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी की शिकायत पर यहां जायज़ा लिया गया, जिनमें नाजायज़ कब्जे की इत्तला दुरुस्त पाई गई। हैदरा ने इलाके को दौरा करने के बाद पार्क के लिए मुख्तस अराजी के अतराफ हसार बंदी कर दी और नाजायज़ कब्जे को बर्खास्त कर दिया। हैदरा की इस कार्रवाई पर मुकामी अवाम और कॉलोनी के मकीनों ने मसरत का इजहार किया।
शालीबंडा के कमरावाड़ी इलाके में इतवार और पीर के दरमियानी शब एक निजी बस के बेकाबू होकर बरकी खंभे से टकरा जाने के नतीजे में मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। वाक़या निफ्स शब के करीब पेश आया जब निजी बस तंग और गुंजान गलियों से गुजरते हुए खंभे से जा टकराई, जिसके बायस खंभा गिर पड़ा और बस का लगेज कोरियर भी अलग होकर नीचे गिर पड़ा। खड़ी गाड़ियों पर आ गिरा। इस हादसे में 3 कारों और कई 2 पहिए गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही बरकी महकमा और पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। ताहम मरम्मती काम मुकम्मल न होने के सबब ताहाल बिजली की सप्लाई बहाल नहीं की जा सकी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वीकेंड 6 और 7 फरवरी को शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 2 रोज़ा खुसूसी मुहिम चलाई, जिसके दौरान मजमूई तौर पर 604 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अफराद में 492 टू व्हीलर चलाने वाले, 42 3 व्हीलर्स के ड्राइवर्स जबकि 70 4 व्हीलर्स और दीगर गाड़ियों के ड्राइवर्स शामिल थे। ब्लड अल्कोहल कंटेंट जांच में 30 से 50 के दरमियान 141, 100 के दरमियान 238, 100 से 150 के दरमियान 127, 151 से 200 के दरमियान 61 और 300 से ज़ायद सतह के 5 मामला सामने आए। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया कि शराब पीकर ड्राइविंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखी गई और आइंदा भी ऐसी खुसूसी मुहिमात जारी रहेंगी, जबकि अवाम से अपील की गई है कि वो क़वानीन की पाबंदी करते हुए ताउन करें ताकि हादिसात से बचा जा सके। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मुसलमानों की तस्वीर पर फायरिंग दिखाने वाली वीडियो, आसाम सीएम की शरंगेज़ाना हरकत के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का मुतालिबा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पुलिस कमिश्नर से रुजू। बीआरएस दरअसल ब्लैकमेल करने वाली असल सियासी जमात, बीआरएस व बीजेपी में कोई फर्क नहीं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इल्जाम। अकबरुद्दीन ओवैसी का निजामाबाद में रेवंत रेड्डी पर तंज, खोखले वादों का इल्जाम, गैस सिलेंडर, पेंशन व मकानात कहां गए, कांग्रेस से मांगा जवाब। फोन टैपिंग केस में सबूत मिटाने के इल्जामात, बीजेपी एमपी अरविंद का उत्तम कुमार रेड्डी पर बड़ा हमला, केसीआर से मुबैना लेन देन का दावा। तेलंगाना के अवाम को रेवंत रेड्डी के वादों पर कोई भरोसा नहीं, चीफ मिनिस्टर कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बीआरएस लीडर केटीआर की तनकीद। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के एसी वीआईपी टेंट्स, बी कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।